Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we are going to speak or learn about the research methodology. So, here we are going to solve the MCQs. So, first MCQ, that an image perception or concept that is capable of measurement is called, it is called as a variable. Option number D is correct here. Question number 2, in order to pursue or the pursuing the research, which of the following is priorly required? So in order to pursue the research, which thing is priorly important or required? So the options are here: developing a research design, formulating research question. Formulating research question, it is our correct answer. Now question number 3, what are the conditions in which type I error occurs or the first error occurs? So it is the null hypothesis get rejected, and even if it is true. Question number 4, how to judge the depth of any research? किसी भी research की depth कैसे judge की जाए? So it should be by research objective. So option number C is correct here. Which of the following is not the method of research? कौन सा दिए गए ऑप्शन में से रिसर्च मेथड नहीं है? तो सर्वे मेथड होता है, हिस्टोरिकल मेथड होता है, फिलोसॉफिकल भी होता है, ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च, इट इज़ अ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे. इट इज़ अ डेफिनेशन विच इज़ आस्क अबाउट रिसर्च. सो रिसर्च इज़ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम. रिसर्च वो होती है जो एक साइंटिफिक वे से वर्क करती है किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन या ट्रूथ ढूंढने के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. In the process of conducting research, what is formulation of hypothesis? So the here correct option is option number C, selection of research tools. Question number 8, the main objective of which study to acquire knowledge, or the dash studies to acquire knowledge. So the main objective of acquire the knowledge is descriptive study. Then question number 9, dash dash is concerned with the discovering and testing certain variables with their association or disassociation. तो ऐसा क्या है? इट्स कंसर्न विद द डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायग्नोस्टिक, or the diagnostic is a concern with the discovering and testing certain variable which is known as a diagnostic research. Now the next question, one of the term given below is defined as a bundle of meaning or characteristics associated with the certain event, object, condition, situation and the like. So one of the term is below is defined as bundle, meaning, characteristic, which is known as a concept. So the option number C is correct. कॉन्सेप्ट आर डैश ऑफ अ रिसर्च. कॉन्सेप्ट क्या होती है रिसर्च की? तो कॉन्सेप्ट टूल्स होती है रिसर्च की. रिसर्च में कॉन्सेप्ट को एज अ टूल भी हम यूज़ करते हैं. देन कॉन्सेप्ट ऑफ टू टाइप्स. सो हियर कॉन्सेप्ट ऑफ टू टाइप्स इज दैट abstract concepts and the concrete concepts. So the option number C is correct again. Then next question, here is a statement given in front of you, that a statement of the quantitative research question should. So option A है extend the statement of purpose by specifying exactly the question. देखो, a statement of the quantitative research question should be, and B दिया है help the research in selecting appropriate participant, research method, measures and material. So which one is correct? Or the specify the area of interest. So the all are correct. A statement of quantitative research should be extend the statement of purpose by specifying exactly the question, as well as help the research in selecting appropriate participant, research method, measures and materials, and as well as specify the variables of interest also. Next question, why do you need to review the existing literature? हमें existing literature का review लेना क्यों ज़रूरी है? Why we need it? So the correct option is to find out what is already known about your area of interest. मतलब जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया में ऑलरेडी क्या क्या लोगों को पता है या उसमें क्या बातें नोन है जिसमें आपका रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट आता है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. देन व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ एनालिसिस?
So the unit of analysis mean that main parameter. Next, a formal document that present the research objective, designing, achieving these objective and expected outcome deliverable of the study is called. एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट करता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स दैट डिलीवरेबल ऑफ द स्टडी, उसे क्या कहा जाता है? उसे रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है. देखो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करता है, डिज़ाइन ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करता है, उससे एक्सपेक्टेड आउटकम्स निकलते हैं एंड ऐसे स्टडी को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं. नाउ सर्वे इज़ अ डैश स्टडी. तो सर्वे क्या है? सो सर्वे इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है जिससे हम फैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे देयर इज एन दैट एन्यूमरेटर एंड अ डैश. So in a survey there is a enumerator as well as a respondent. The first purpose of a survey is, सर्वे का फर्स्ट पर्पस क्या होता है? तो द फर्स्ट पर्पस ऑफ सर्वे इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. किसी भी सर्वे का फर्स्ट पर्पस होता है शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन इन विच ओनली वन अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल इज कॉल्ड. क्वेश्चन इन विच ओनली, जहाँ पे टू अल्टरनेटिव ही पॉसिबल है, उसे क्या कहते हैं? इट इज़ दैट डिक्टोमस क्वेश्चंस कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस के कोर एलिमेंट क्या है? अगर हम देखो ऑप्शंस देखें, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इंट्रोडक्शन, देन द लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन द रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. सो इट इज दीज आर द कोर एलिमेंट ऑफ रिसर्च. किसी भी रिसर्च प्रोसेस के ये कोर एलिमेंट कहलाते हैं. पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन रिजल्ट्स एंड डिसीजन एंड कंक्लूजन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज. पहले तो कॉजेस को आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के कॉजेस को आइडेंटिफाई करो. देन पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ये क्या कहलाता है? तो ये डायग्नोस्टिक स्टडी कहलाता है. डायग्नोस्टिक स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम एंड देन टू ट्राई टू सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज. दैट प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में सेकेंड स्टेप क्या है? सो द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम और द नो हियर इज द सी सर्वे इज अ करेक्ट. नाउ क्वेश्चनियर इज फिल्ड बाय. क्वेश्चनियर कौन फिल करता है? तो क्वेश्चनियर को रिस्पोंडेंट फिल करते हैं. द मेन प्रॉब्लम इज इन क्वेश्चनियर इज. क्वेश्चनियर में मेन प्रॉब्लम क्या होती है? तो क्वेश्चनियर में मेन प्रॉब्लम होती है शो इनएबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो शोज वो दिखाता है कि इनएबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द टर्म लॉन्गिट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स. सो लॉन्गिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है? तो रिसर्च मेथड्स में लॉन्गिट्यूशनल डिज़ाइन होता है अ स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टिंक्ट पीरियड. एक ऐसा स्टडी जो फुलफिल हो विद इन अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम टू मैप चेंजेस इन सोशल फेनोमेना, तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड डिज़ाइन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में बारे में नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा सही है? तो हमारा सही आंसर होता है सी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विच अचीव्ड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. देन रॉन्ग क्वेश्चनियर इज एन एग्जाम्पल. रॉन्ग क्वेश्चनियर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो रॉन्ग क्वेश्चनियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन प्रॉब्लम. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा. पहले से ही कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और हम उसका स्टडी करते हैं तो वो कौन से डाटा में कंसिडर होता है? क्योंकि वो पहले से है, हमने उसे इन्वेंट नहीं किया है, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लेंदी वन, योर कलीग इज़ कन्फ्यूज अबाउट द यूजिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. आपका कलीग कन्फ्यूज है यूजिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस as he knows that something is wrong but is not sure of the specific causes to investigate. He seems to be having problem with which is often the hardest step to take. देखो आपका कलीग है जो कंफ्यूज है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में, उसे पता है
कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, बट वो श्योर नहीं है स्पेसिफिक कॉजेस इन्वेस्टिगेशन में. सो सही आंसर हमारा यहाँ पे होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सेक्शन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट. So which technique is generally followed that population is finite? So the systematic sampling technique को हम use कर सकते हैं. Which one is called a non probability sampling? कोटा सैम्पलिंग को ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. देन थर्ड क्वेश्चन, द डैश स्केल मेजरमेंट हैज़ अ नेचुरल जीरो. सो द रेशो स्केल मेजरमेंट हैज़ अ नेचुरल जीरो. नेक्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग्स आर टाइप्स ऑफ. देखो मैंने इस पर अलग वीडियो भी बनाई है. क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है. तो आपने अब तक नहीं देखी तो लॉग इन माई चैनल एंड वॉच इट. सो क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड सिस्टमेटिक ये टाइप है रैंडम सैम्पलिंग के. देन क्वेश्चन नंबर 5, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड. So the complete list of all the sampling unit is called as sampling frame. कोई भी sampling के complete unit के list को sampling frame कहा जाता है. The split half method is used as a test of. The split half method is used as a test of internal reliability. What is a sampling unit? Sampling unit क्या होता है? So इसका हमारा सही आंसर हो जाता है B. सैम्पलिंग यूनिट वो होता है दैट इज़ बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड. मतलब बेसिक यूनिट होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड कंटेन रहते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहलाता है. तो क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग मतलब ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होता है. ओके. देन व्हेन वन एग्जामाइन द एंटायर पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दिस इज कॉल्ड. सो व्हेन वन एग्जामाइन द एंटायर पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इसे कहा जाता है सेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ सबसेट ऑफ अ डैश. तो सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. समझो कि कोई 500 लोगों को आपने लिया और उसमें से 10 सैम्पल आपने चूज़ किए, तो सैम्पल के सबसेट पॉपुलेशन के सबसेट होते हैं सैम्पल. देन रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. स्केल इन विच द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर 2 और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक चॉइसेस अमंग देम इज. देखो, स्केल इन विच रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर 2 और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक अ चॉइसेस. मतलब इन स्केल व्हेन रिस्पोंडेंट डायरेक्टली 2 चीज़ों को कंपेयर करता है एंड चॉइसेस अपनी बना लेता है तो उसे रैंकिंग स्केल कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉपुलेशन दैट प्रपोर्शन इक्वल अप टू z टेस्ट एंड इज इक्वल टू x minus y, so it is a equation is given to you and the correct answer of this equation is as a standard normal variable. Then the degree of freedom for pair t-test based on the pair of observation. So degree of freedom for pair t-test based on n pair of observation is n minus 1. Which test is the part of parametric test? So here option D is correct. Z test is the part of parametric test. Now the remaining 10 questions we will see. SPSS is a acronym of the following. ये किसका फुल फॉर्म है? तो SPSS जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस. फाइनल स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस इज. रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेज क्या होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट राइटिंग. अ कॉम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड. सो कॉम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड thesis. The first page of the research report is. So the first page of the research report is the title page. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो फर्स्ट पेज जो होता है रिसर्च रिपोर्ट का वो होता है टाइटल पेज. नाउ द सी स्क्वायर टेस्ट क्या है? इट इज़ अ स्टैटिक टेस्ट है. ओके, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ ANOVA, ANOVA is dash. So it is a one way analysis of variance.
एक वेरिएंस का वन वे एनालिसिस होता है, उसे अनोवा कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. सो द फुट नोट जो है वो 7 मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में नहीं आती है, जैसे मैंने पहले 7 पार्ट बताया है ऊपर एक क्वेश्चन में. नाउ इन SPSS व्हाट इज़ द डाटा वीवर. तो हमारे SPSS जो है, जो SPSS हमने देखा था, स्टैटिस्टिकल पैकेज बार सोशल साइंस जो है वो उसके डाटा वीवर क्या है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अ स्प्रेडशीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड. ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें डाटा एंटर्ड होता है. व्हाट टाइप ऑफ अ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर द कंपेयरिंग वैल्यू और कैटेगरीज. किसी भी कंपेयरिंग वैल्यू और कैटेगरीज को मतलब what type of chart we should use for it. So we should use a column chart for it, for the comparing values of the categories. Then the question number 10, a feature that display only the data column according to the specified criteria, which is known as a filtering. A feature that display only the data in column that according to the specified criteria, तो उसे filtering कहते हैं. Function in MS Excel must be begin with. जो फंक्शन इन MS Excel होते हैं मस्ट बी बिगिन विथ एन इक्वल साइन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द डैश फीचर ऑफ MS Excel क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा. तो वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाता है हमारा एटोफिल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल. सो देयर आर 3. इन एक्सेल विच वन डिनोट अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू द B5. So the here correct option is option number B, B1 that E5. You can solve it also. Stop the video and try to solve. What type of a chart is useful to for showing trend or changes over time? So that is a line chart. This is how we have completed the near about 30 to 40 question in video about the research methodology. If you are doing a paper first of UGC NET PET exam entrance, then the video is useful for you guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel.